Hello, assalamu alaikum everyone. Can you all hear me? Okay, if you all can hear me, show me a thumbs up. All right. I have seen you after a very long time. I hope you all are doing well and fine as we don't have so many participants right now. I don't know what happened with my previous account. It is not, working properly. So that's why I send you the new ID and password. Anyways, yes, Nurul Hadi, you want to say something? आज तो बहुत कम बच्चे प्रेजेंट है, ज्यादा Exactly, नहीं Nurul है। Hadi. I know that I can see that I am a host of the class. But anyways, okay. So without wasting any time, let's start the class. As I didn't conduct your class yesterday, so who will tell me what we were studying previously or what we were discussing previously? Who will tell me that? Okay, yes, Kissa, you want to tell me that? Okay. Miss, we are learning part of speech. Exactly. We were discussing parts of a speech. Okay, is there anyone who can tell me what is parts of a speech exactly? Is there anyone who can? Nobody can tell me that? Okay, let me explain you. What is a basically parts of a speech? Parts of a speech, आपको मैंने एक definition लिखवाई थी parts of a speech की. किसी को याद है वो definition? Okay, tell me. Kissa, tell me that definition. Miss, I know that you write it a definition, but I didn't know which definition is it. Definition of parts of I a speech. didn't read Okay, it. okay. Who can tell me? Okay, Kanza Misbah, you want to tell me that? Okay, yes, Kanza. This parts of speech definition. The parts of speech indicates how the word functions in meaning as well as grammatically within the sentence. Exactly. अगर आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है उस सेंटेंस के अंदर एक वर्ड है कोई सा भी वर्ड फॉर एग्जाम्पल सबरीना इज अ गर्ल द वर्ड सबरीना इन दैट सेंटेंस is a word, okay? And according to parts of the speech, if we know what is parts of the speech, we can tell you what is the work which Sabrina word is doing in that sentence, in that particular sentence. So that is why it is called parts of speech. What is a speech? A speech is basically what we talk or what we write. Any sentence is called a speech, all right? So speech, every part, every word of that speech has a different job or belongs to a different community. I have already showed you the video in which every part is explained very completely, but as I all you know कि आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आया होगा. So today I'm going to explain you with the chart, okay, that what is parts of speech. हमें ये तो already पता है कि how many parts of speech are there. All right. Okay. Everybody can see this picture. Everybody can see this picture. Is the picture visible to everyone? किसी को picture दिख रही है? नहीं दिख रही? Okay, wait. Let me share it again. Now the picture is visible. अब सबको picture दिख रही है? Okay.
So the sentence is written over here. The boy yelled help and he saw a brave dog quickly run to the rescue. Okay, as we all know that there are 8 parts of speech, 1, 2, 3. Okay, they are given 9 parts of speech. All right, article is also added in a parts of speech. The video which we have seen last days, article was not mentioned there. अच्छा होता क्या है इंग्लिश में नॉर्मली चेंजेस आते रहते हैं ग्रेजुअली, ठीक है. जिस तरीके से लाइक रिसेंटली आई हैव लिसन के अल्फाबेटिकल उसमें से अल्फाबेट्स में से जी वर्ड हटाया जा रहा है, ठीक है. जो जेड आपका वर्ड है ना वो एक्सक्लूड कर दिया जा रहा है अल्फाबेट्स में से. ये ऐसा इंग्लिश में ग्रेजुअली चेंजेस आते रहते हैं. इसी तरीके से पहले 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते थे, अब 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए हैं. कैसे? उसमें आर्टिकल ऐड कर दिया गया है. क्या मुझे कोई बता सकता है कि व्हाट इज आर्टिकल? किसी को आर्टिकल्स के बारे में पता है? वेरी नाइस. किसी को भी नहीं पता आर्टिकल के बारे में. ऑल राइट, नोबडी विल यूज द एनोटेट, nobody will use it. Okay, the boy yelled help and he saw a brave dog quickly ran to the rescue. अब यहाँ पे आपको 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच दिए हुए हैं और हर पार्ट ऑफ स्पीच का एक डिफरेंट कलर है और वो कलर उस वर्ड के ऊपर हुआ हुआ है, ठीक है. अब आपको खुद ही से पता लग जाएगा कौन सा वर्ड किस पार्ट ऑफ स्पीच कम्युनिटी से बिलोंग करता है. जैसे द वर्ड जो फर्स्ट वर्ड है द, इट बिलोंग्स टू एन आर्टिकल. आर्टिकल आपके 3 तरीके के होते हैं. A and the. A and the is an article. A and the is an article. ठीक है, कहीं पे भी a word यूज होगा, the word यूज होगा या n word यूज होगा. ये तीनों वर्ड्स आर्टिकल्स में आते हैं. तीनों वर्ड किस में आते हैं? आर्टिकल्स में आते हैं, ठीक है. I am a girl. The word a is an article. The word a is an article. The word a is an article. इसमें जो the यूज हो रहा है it is also an article, ठीक है. n आर्टिकल में जो n यूज हो रहा है वो भी आर्टिकल कम्युनिटी से बिलोंग करता है, ठीक है. तो आर्टिकल आपके पास कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के. राइट इट डाउन. इफ यू हैव एनी रफ कॉपी, राइट इट डाउन. देयर आर 3 आर्टिकल्स, a and n, the. There are 3 articles, a and the. Yes, Nurul Hadi. मैं देख रहा था नहीं है इससे कुछ आपने स्क्रीन शेयर कराया कुछ. What, Nurul Hadi? मिस आपने जो स्क्रीन शेयर कराई है इसमें प्रोनाउन वर्ब आर्टिकल ये सब सही से दिख रहा नहीं है. It's okay. मैं तो बोल रही हूँ ना, आपको मेरी आवाज सही से आ रही है? Concentrate on my voice. What I am saying, just write that down. Okay, so there are 3 articles, a and the. Write it down in any rough copy. जहाँ पे आपने लास्ट टाइम हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम किया था ना, उधर ही लिख लीजिए. यस जाफर. Teacher, there pronoun, verb, adjective, article, adverb, preposition, conjunction, interjection are definitions. नहीं, आपने यहाँ पे कोई डेफिनेशन कुछ भी नहीं लिखना है. जो मैं आपको बोल रही हूँ ना जाफर, आपने वो लिखना है. अंडरस्टैंड? टीचर लेकिन सारी डेफिनेशन टीचर सही से नजर नहीं आ रही. तो जाफर मैंने आपको बोला भी नहीं कि आप इनकी डेफिनेशंस लिखिए. मैंने आपको नहीं बोला. मैं सिर्फ आपको इतना बोल रही हूँ कि आप कॉपी में लिखिए देयर आर 3 आर्टिकल्स, a and the. I never said to copy down anything from the screen. Try to listen to me carefully. All right? Okay. Done everybody? Can we move forward? पता है आपको किस तरीके से लिखना है? बेसिकली आपने कॉपी में आर्टिकल लिखा, आपने लिखा ARTICLE आर्टिकल, आगे उसके 2 डॉट्स बनाए और आगे उसके डेफिनेशन लिखी देयर आर 3 आर्टिकल्स, a and the.
दैट्स इट. उसके बाद जब मैं नेक्स्ट डेफिनेशन जो भी बताऊंगी आपने उसके नीचे वो लिखनी है, नेक्स्ट डेफिनेशन का नाम लिखना है, आगे 2 डॉट्स बनाने हैं और उसके आगे जो मैं बोलूंगी आपने वो लिखना है. ऑलराइट, कैन यू मूव फॉरवर्ड? सो first word belongs to article. Next word is boy. The boy. Boy is a noun. What is noun? A noun is the name of person, place, animal or thing. Boy भी एक person के नाम में आ जाता है. Boy, girl और आपका teacher or Sabrina, Kanza, Nurul Hadi, all of these names belong to a person and a person belongs to a noun. ठीक है? Boy is a noun. Noun की definition आप सबको पता है. What is the definition of noun? Noun is the name of person, place, animal or thing. Done. The next word is the boy yelled. Yelled का मतलब होता है चीखना. जब आप चीखते हैं तो आप क्या करते हैं? आप एक्शन ले रहे होते हैं, आप कोई काम करते हैं, ठीक है, आप इसमें आपका एक्शन डन होता है. येल्ड चीखना. तो ये कौन से आपकी कम्युनिटी से बिलोंग करेगा? ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाएगा? यस नूरुल हादी. preposition. नो, जब आप चीखते हैं Verb. आप बोलते Verb. हैं. एग्जैक्टली ये वर्ब कहलाता है. दिस इज कॉल्ड वर्ब. ठीक है, आप कोई भी जब आपका एक्शन डन होता है, दैट एक्शन, इफ एनी एक्शन इज डन, it is belong to verb. It belongs to word. Okay, let's move forward. The boy yelled, help. Help belongs to an interjection. Help belongs to an interjection. Basically, interjection क्या होता है? In an interjection, we express our emotions. We express our emotions. Like I said, oh my God, you are looking so beautiful. The word oh my God express my emotion, so it is called an interjection. If I will say wow, wow is, you know, an expression, so it belongs to an interjection. If I'll say oh belongs to an, oh is an expression, so it belongs to an interjection. So any expression which shows the feeling, that is belongs to an interjection. Just example, the boy yelled help. उसने चीखा क्या? हेल्प. तो यहाँ पे कौन सा इमोशन एक्सप्रेस हो रहा है? कौन से इमोशंस आ रहे हैं? कि वो परेशानी में है क्योंकि उसको हेल्प चाहिए, इसलिए उसने क्या बोला? हेल्प. द वर्ड हेल्प इज एन एक्सप्रेशन ओवर हियर एंड इट बिलोंग्स टू एन इंटरजेक्शन. ये कौन से वर्ड से बिलोंग करता है? कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है? इंटरजेक्शन से. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां तक सबको समझ में आया? Can I move forward? The boy yelled help and अब आपका वर्ड आ गया एंड. एंड आपका बिलोंग करता है कंजंक्शन से. एंड आपका बिलोंग करता है, एंड आपका बिलोंग करता है एंड आपका बिलोंग करता है कंजंक्शन से. ठीक है, कंजंक्शन आपके वो वर्ड्स होते हैं जो किसी भी दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं. ठीक है, जैसे आई एम अ गर्ल, आई एम अ गर्ल. और एक और आपका सेंटेंस है आई एम अ टीचर. आपका सेंटेंस है आई एम अ गर्ल, आई एम अ टीचर. अगर इन दो सेंटेंसेस को आपने ज्वाइन करना है तो आप इनके बीच में कौन सा वर्ड लगाएंगे जिससे ये ज्वाइन होगा? Yes, who will tell me? I am a girl, I am a teacher. इन दो सेंटेंसेस को अगर आपने ज्वाइन करना है तो आप कौन सा वर्ड लगाएंगे? यस कंजा.
मिस मेरे दिमाग में 2 वर्ड आ रहे हैं. हाँ बताइए. I am a teacher. I am a girl, but I am a teacher. और एक और I am a girl and I am a teacher. Exactly, Kanza, that is wonderful. We can add different words which make a new meanings. ठीक है, अगर आप Thank you, लगाते हैं, very nice, Kanza, very nice attempt. अगर Thank आपका you. sentence होता है, I am a girl, but I am a teacher. It has a totally different meaning. ठीक है, मैं एक लड़की हूँ, लेकिन मैं एक टीचर भी हूँ. ठीक है, आपने लेकिन लगा दिया तो इसमें आप ऑब्वियसली आपकी एक थिंकिंग, एक क्रिटिकल थिंकिंग आपकी इसके अंदर एक आपकी थिंकिंग डेवलप हो रही है, जिसमें वो आपको सोचने पे मजबूर कर रही है कि ऐसी क्या बात है अगर आप टीचर भी हैं और आप एक लड़की भी हैं. ठीक है, आपने बट वर्ड लगा दिया, राइट. लेकिन अगर आप एंड यूज करते हैं तो इट इज अ सिंपल सेंटेंस. वो आपको एक सिंपल मीनिंग देता है कि मैं एक लड़की हूँ और मैं एक टीचर भी हूँ. आई एम अ गर्ल एंड आई एम अ टीचर. ठीक है, अगर मैं इसके बीच में बिकॉज भी लगा सकती हूँ, आई एम अ गर्ल बिकॉज आई एम अ टीचर, मैं ये भी लगा सकती हूँ, लेकिन कोई मीनिंग नहीं बन रहा इसका. क्योंकि मैं टीचर हूँ इसलिए मैं लड़की हूँ, इट डजंट मेक एनी सेंस. ठीक है, तो सम टाइम दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते टाइम हमें मीनिंग का भी ख्याल रखना पड़ता है कि अगर हम इसके बीच में कोई ऐसा वर्ड लगा रहे हैं तो क्या वो एक सेंसिबल मीनिंग दे रहा है हमें. अगर तो दे रहा है, fine, it is fine. अगर वो sensible meaning नहीं दे रहा, we cannot add that word between the sentence then. The boy yelled help and एक सेंटेंस आपका हो गया the boy yelled help. अब नेक्स्ट सेंटेंस जो आपका शुरू हो रहा है, उन दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए हमने बीच में कंजंक्शन का यूज किया. और कंजंक्शन का कौन सा वर्ड यूज किया? एंड यूज किया. कंजंक्शन का कौन सा वर्ड यूज किया? एंड यूज किया. ही. अब आपका आ गया द बॉय येल्ड हेल्प एंड ही आपका यूज हुआ है. क्यों? क्योंकि पहले सेंटेंस में आपके बॉय के बारे में बात हो रही थी. पहले सेंटेंस में आपके बॉय के बारे में बात हो रही थी. दैट इज वाई आपने अब उसके जगह ही यूज किया. प्रोनाउन आर दोज वर्ड्स व्हिच यूज इंस्टेड ऑफ नाउन. Pronoun are those words which is used instead of noun. How can I explain that? Okay. My name is, okay, I will say Sabrina is a girl and she is a good girl. ठीक है, या मैं यहाँ पे ये भी बोल सकती थी सबरीना इज अ गर्ल एंड सबरीना इज अ गुड गर्ल. मैं दो दो बार सबरीना क्यों यूज करूं जब मैं सबरीना की जगह शी वर्ड यूज कर सकती हूँ. अब मैं शी वर्ड क्यों यूज कर रही हूँ? बिकॉज सबरीना एक लड़की है और लड़की के लिए आप हमेशा शी यूज करते हैं. लड़की के लिए आप हमेशा शी यूज करते हैं. ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है द बॉय येल्ड हेल्प एंड. अब यहाँ पे आप बॉय भी यूज कर सकते थे, लेकिन हम बार बार बॉय क्यों यूज करें? वाई नॉट वी यूज ही इंस्टेड ऑफ अ बॉय. ठीक है, तो he is a pronoun and pronoun are those words which is used instead of noun. He, she, it, they, all of them are pronouns. All of them are pronouns. ठीक है, क्लियर? इतना समझ में आ रहा है? कोई भी ऐसी चीज जो अब तक समझ में ना आई हो? Is there anything which is not clear to you? Yes, किस्सा? मिस मुझे सही से वो नहीं समझ आया पार्ट ऑफ स्पीच. किस्सा, हम ये अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस कर रहे हैं. आपको एक भी पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में नहीं आया? मिस मुझे नहीं आया. Okay, no worries, no worries. Let me explain you. Yes, Jafar? Yeah, I don't understand adjective and article. Adjectives तो मैंने पढ़ाए भी नहीं है अभी. जाफर, आप इतना आगे कैसे पहुंच रहे? देखें, पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली क्या होता है बेटा? पार्ट्स ऑफ स्पीच का आप मतलब समझें. पार्ट ऑफ स्पीच, स्पीच के पार्ट्स, स्पीच के पार्ट्स. ठीक है,
आपका अगर एक ड्रेस सिलता है, अगर आप एक ड्रेस पहनते हो, उस ड्रेस में अलग अलग पार्ट्स होते हैं. आपका ट्राउजर अलग होता है, आपकी शर्ट अलग होती है, आपका दुपट्टा अलग होता है. तो दे ऑल हैव डिफरेंट पार्ट्स. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ अ ड्रेस. ऐसे ही पार्ट्स ऑफ अ स्पीच में एक सेंटेंस के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अलग अलग वर्ड्स होते हैं. जब हम उन सब वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं तब जाके आपको दिखता है ना कि हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट होता है. एम आई राइट? एम आई राइट? ठीक है, इसी तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच का यही मतलब है कि हर वर्ड एक डिफरेंट कम्युनिटी से बिलोंग करता है. आप सबसे पहले ये समझे कि टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं कितने. टोटल 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच है. ठीक है, टोटल 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच है. आपके सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स होंगे, जितने भी वर्ड्स, आप चाहे कोई भी सेंटेंस उठा लें, उस सेंटेंस का हर वर्ड किसी ना किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता होगा. उस सेंटेंस का हर वर्ड किसी ना किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता होगा. उस चीज को समझने के लिए पहले हमें ये सारे 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे. जब हमें ये 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आ जाएंगे ना, फिर हम इजीली बता सकते हैं इस सेंटेंस का कौन सा वर्ड किस वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच का है. समझ आई किस्सा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं. हमारी क्लास का टाइम ओवर हो चुका है. हम कल दोबारा इधर से ही कंटिन्यू करेंगे. आई विल एक्सप्लेन यू अगेन ऑल दीज पार्ट्स ऑफ स्पीच. ऑल राइट? एंड वन मोर थिंग, इस वीडियो को दोबारा जब ये अपलोड हो जाएगी रात में, दोबारा से देखिएगा. जो मैंने अभी आपको समझाया है, हो सकता है आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए. ऑल राइट एवरीवन? ओके, दैट्स इट फॉर टुडे. Allah Hafiz. Take care of yourself everyone. See you tomorrow.